Now I am going to teach you the next point is called the preamble of our constitution. The preamble is a sort of introduction to the constitution which declares the aim and objectives of the constitution. It declares that the preamble is a soul of our constitution. The 42 Constitution Amendment Act of 1976 had added the words socialist, secular, unity and integrity of the nation to the preamble. The preamble is important because it clearly states that the people are the highest authority. Any doubt about the constitution can be clarified by checking the words of the preamble. The preamble starts with the words, "We are the people of India." It means that the people of India are the source of every type of authority. Even government is elected by the citizens of India. Students, the preamble is a short introduction of our constitution and it is called the soul of our constitution. Now we have discussed the next point is called the features of our preamble. The first feature is known that the sovereign. Sovereign state means a state is free to conduct her internal as well as external affairs without being dictated by any outside power. Next feature is socialist. India aims to establish a social and economic system that is free from any type of exploitation and where there is equality and fair distribution of wealth. Next feature is secular. It means all religions command equal respect and recognition. There is no official religion. Students, we know very well India is called the secular country. That means no any state religion. Next feature says democratic. India is a democratic country, which means that the people elect their own representative to rule themselves. We know very well that now if you are eligible to 18 years old, then we can vote. Abraham Lincoln tells about the democratic country for the people, by the people and of the people. Now next feature is republic. India is a republic country. That means that the head of the state is elected directly or indirectly by the people for a fixed tenure of 5 years, and the rule by inheritance concept is not valid in the country. Students, these are the description of the preamble of our constitution. Now the next topic is the objectives of the constitution. Many types of objectives are present in our constitution of India. These are the justice, liberty, equality, fraternity, etc. So student, अभी तक हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में जाना. हम लोगों ने डिस्क्राइब किया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब बनकर तैयार हुआ और कैसे बना. हम लोगों ने जाना कि हमारा देश जो है वो 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ था, लेकिन उसके पहले इंडिया जो था वो अंग्रेजों के अधीन था. अंग्रेजों ने सबसे पहले इंडिया को एक कॉलोनी इस्टेब्लिश किया. उन्होंने सबसे पहले बंगाल के नवाब को हराकर बैटल ऑफ प्लासी में अपनी जीत हासिल की और उसके बाद इंडिया में अपने एम्पायर को इस्टेब्लिश किया. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बाद बहुत सारे डिमांड्स को उन लोगों ने उनके सामने रखा. कुछ रिफॉर्म्स जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड
गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाने गए, जिसके थ्रू हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन को बनाया। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैबिनेट मिशन के रूप में एक टीम भेजी, जिसके थ्रू हमने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इस्टेब्लिश किया और उसके थ्रू हमारा फॉर्मेशन हुआ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, पावर्स एंड फंक्शन होता है, जिसके थ्रू हमारी गवर्नमेंट गवर्न करती है, कंट्री के ऊपर गवर्न करती है, डेट मीन्स शासन करती है। बहुत सारे पॉइंट्स हमारे इस चैप्टर के अंदर दिए गए हैं, जैसे इंडिया का संविधान जो है वो सारे वर्ल्ड में लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में और लिखित संविधान के रूप में जाना जाता है। इसको बनाने में 2 साल 11 महीने और 17 दिन का टाइम लगा था। इसका मेन एम जो है वो सिटीजन्स का वेलबींग है, मीन्स सिटीजन्स का वेलफेयर है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेट्स है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, जिसमें कि स्टेट्स और द सेंट्रल हेड इज नोन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट को हम लोग हेड ऑफ कंट्री के नाम से जानते हैं, लेकिन वो नॉमिनल हेड के रूप में जाने गए हैं क्योंकि उनके सारे पावर के यूज को प्राइम मिनिस्टर द्वारा किया जाता है। एंड उसके बाद हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जाना कि उसके कितने मेंबर्स थे और रिड्यूस होकर कितने हो गए। आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमारे पार्टीशन के बाद, हमारे इंडिया के पार्टीशन के बाद जो उसके मेंबर थे वो 389 से 308 रिड्यूस हो गए थे। नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था हमारे प्रियम्बल के बारे में। हमारा जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का शॉर्ट इंट्रोडक्शन है और हमारे प्रियम्बल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सोल के रूप में जाना गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा प्रियम्बल का बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है। इसके फीचर्स और भी अधिक इम्पोर्टेंस है, जैसे मोस्ट ऑफ द फीचर्स में द सेकुलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष, यानी कि धर्मनिरपेक्ष का मीन्स होता है कि हमारे कंट्री में कोई एक रिलीजन नहीं है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन के लोग हमारे यहाँ रहते हैं। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया को डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों कहा गया है ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि हम लोग अपने वोट के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर होल ऑफ द चैप्टर। सो थैंक यू, स्टे सेफ।